फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स की ब्यूटीफुल जर्नी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन एंड depending on this only a single property, there is a lot of question asked in the last few years entrance exam, especially CSIR. We will just try to focus on the canonical transformation. What is canonical transformation? Canonical transformation is the done to simplify the problem. Okay, what is the basic property? How can we justify the canonical transformation? Look at the board. Suppose we have a function small qi pi and we want to transform in capital Q and capital P. Okay, we have a function in small qi and pi and we want to change this in the capital Q and capital P. As we all know that h is the function of qi, pi and t. Corresponding this given information, there is a Hamiltonian, and corresponding this information, there will also a Hamiltonian. It may be function of time or not, may be function of time. Okay, so here is we want to transform canonical transform of q I pi such that q I pi capital Q I capital Pi such that the Hamiltonian equation of motion does not change. Point to be noted, Hamiltonian equation of motion does not change in the canonical transformation. This is the condition for the canonical transformation. Okay, hope so you got the point. हमने अभी बात किया है कि जो हमारा हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है जब भी हम कोई कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो। ओके, सो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास पता है कि डेल ये जो फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ h इज फंक्शन ऑफ q i p i एंड टाइम. सो हाउ टू राइट द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, डेल h over del qi. Del h over del qi is pi. Okay, del h over del qi is equal to pi. This is the first Hamiltonian equation of motion. फर्स्ट हमने क्या किया है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसके सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है और जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला हुआ है वो क्या है, पी आई. और इसका ध्यान देने वाली बात है, सिंपली पी आई मोमेंटम नहीं होता है, मोमेंटम का डॉट होता है, यानी कि डेल पी ओवर डेल टी इसका एक्सप्रेशन हुआ. ओके, और जो सेकेंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है डेल एच ओवर डेल, लुक एट द फर्स्ट वी हैव डिराइव्ड एंड द सेकेंड टर्म इज पी आई. ओके, सो व्हाट वी विल गेट, माइनस के क्यू आई डॉट. व्हाट वी विल गेट, माइनस के क्यू आई डॉट. ओके, सो सिंपली दीज आर टू Hamiltonian equation of motion. So if we try to write the canonical transform for such a function, that we will have the Hamiltonian equation will be the same for both. Okay, so Hamiltonian equation of motion will be for this del h over del, right first q, and what will be final expression p. Okay, dot, write the first expression, second term will be the expression and write the second term del h over del p is equal to minus k q dot. सपोज दिस इज अ जनरलाइज फंक्शन, जनरलाइज अगर हम करना चाहें तो ये जनरलाइज कुछ इस प्रकार होगा. ओके, so Hamiltonian equation of motion will does not change in any condition if the transform is canonical transform. Okay, now the most important property, the Poisson bracket of new variable with respect to old variable is always 1. Note down the Poisson bracket PB of new variable with respect to old variable is always 1. Of new variable
with respect to old variable is always 1. ओके, सो न्यू वेरिएबल पॉइजन ब्रैकेट क्या है, क्यू आई सॉरी कैपिटल पी, दिस इज द न्यू वेरिएबल. इसका जो पॉइजन ब्रैकेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेरिएबल, सो डेल क्यू ओवर डेल क्यू आई डॉट डेल पी ओवर डेल पी आई डॉट माइनस डेल क्यू ओवर डेल पी आई इंटू डेल पी ओवर डेल क्यू आई. इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आनी चाहिए, ऑलवेज 1. इस प्रॉपर्टी में मोस्टली एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे रिटन है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन सच दैट q and p such that q is defined as this and p is defined as that. And in the question, what is the value of alpha and beta that the ये जो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म को सेटिस्फाई करें, वेरीफाई करें. ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा एंड बीटा की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है हमारा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो हमें सिंपली क्या करना होगा, सिंपली हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है और हमें फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है. सपोज ये हमारा Q है और ये P है, सो हमें सेम इक्वेशन में हमारे पास सेम जो फार्मूला गिवन है इस फार्मूले में रखना है, उसकी वैल्यू 1 पुट करनी है, सो हमारे पास आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, आइए देखते हैं. वी हैव Q and P. I am going to rewrite again. Del Q over del Qi, del P over del Pi, sorry small p, minus del Q over del Pi, sorry small p, small pi, and del QP and QP. इसकी जो फाइनल एक्सप्रेशन होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए. सो लेट्स डिराइव दिस. सो वी विल हैव Q के सापेक्ष डिफरेंशिएशन लेना है, इसमें स्मॉल q, लुक एट द स्मॉल q का डिफरेंशिएशन लेना होगा Q के सापेक्ष. सो डेल ओवर डेल Q की पावर अल्फा कॉस बीटा p. ओके, सेकेंड टर्म डेल ओवर डेल पी आई. ओके, पी सिंपली पी. सो यहाँ पे जो p की जो वैल्यू है q की पावर अल्फा साइन बीटा p. ओके, नाउ माइनस डेल ओवर डेल पी आई, ओके, q की वैल्यू ये है q अल्फा कॉस बीटा p डिवाइडेड बाय डेल p इंटू डेल ओवर डेल q. We have write this and now this q की पावर अल्फा साइन बीटा p. होप सो दिस इज विजिबल. अगर नहीं विजिबल है सो दिस इज द सेकेंड टर्म q की पावर अल्फा साइन बीटा p. q की पावर अल्फा साइन बीटा p, दिस इज द एक्सप्रेशन. ओके, सो नाउ सिंपली और इसकी जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा. ओके, सो फाइंड आउट सिंपल डेरिवेशन. सेकेंड टर्म विल बी कांस्टेंट अल्फा q की पावर अल्फा माइनस 1 कॉस बीटा p एक कांस्टेंट होगा. सेकेंड टर्म को p के सापेक्ष करना है, साइन p का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस p. q की पावर अल्फा कांस्टेंट होगा, ठीक है, और इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया वो हो गया हमारा कॉस बीटा p एंड अगेन बीटा वंस अगेन माइनस डेल p, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, सो माइनस एंड माइनस दिस विल बिकम प्लस. q की पावर अल्फा इज द कांस्टेंट और
साइन बीटा पी, लुक एट द एक्सप्रेशन, कॉस पी का डिफरेंशिएशन होगा साइन पी माइनस के साइन पी, एंड माइनस विल बी बिकम प्लस, ओके, एंड व्हेन वी विल कम अगेन बीटा here, and once again you have to differentiate this as a, so this will be alpha, q के रिस्पेक्ट में करना है, अल्फा q की पावर अल्फा माइनस 1 साइन बीटा p, ओके, दिस इज साइन बीटा p अलग है और ये बीटा अलग है, ओके, सो इसकी जो फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 के बराबर आएगी। सो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इक्वेशन को देखिए, अल्फा q की पावर अल्फा माइनस 1, ओके, सो व्हाट विल बी एक्सप्रेशन, अल्फा q की पावर 2 अल्फा माइनस 1, बिकॉज दिस इज द मल्टीप्लाई m की पावर n इंटू m की पावर सॉरी m की पावर x, हम वी आर एडिंग m की पावर x एंड m की पावर y मल्टीप्लाई में है, सो m की पावर x प्लस y, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ओके, सो ये रहा हमारे पास एक्सप्रेशन, और ये जो बचेगा यहाँ पे एक बीटा टर्म और आएगा, दिस बीटा एंड cos स्क्वायर बीटा p, okay, this is the first expression, and second expression we will get, again look, alpha, this alpha, and here is beta, alpha beta, okay, alpha beta q की power, again we will use the same property here, we will use same property and we will get alpha plus alpha 2 alpha minus 1 and sin स्क्वायर बीटा p, और इसकी जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो होगा 1, ओके। सो हियर वी कैन टेक अ कॉमन ऑफ अल्फा बीटा q की पावर 2 अल्फा माइनस 1, वी विल गेट cos स्क्वायर बीटा p प्लस sin स्क्वायर बीटा p, and its final expression will be 1. Again you can simply use those formula, cos square theta plus sin square theta is equal to 1, so this term will contribute to 1 and we will have alpha beta q की power 2 alpha minus 1 is equal to 1, okay। यहाँ तक तो सभी लोग जनरली पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो हमें फाइंड आउट मेन प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ओके, सो उसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने आप, आज मैं तो कर ही रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे देयर इज अ ट्रिक, यहाँ पे तो लगभग सभी लोग पहुंच जाएंगे, बट यहाँ के बाद जो है एक छोटा सा ट्रिक प्ले है, वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, अल्फा बीटा इज गिवन हियर q की पावर 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ओके। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सिंपली देखिए, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, अल्फा बीटा आर द सम कांस्टेंट टर्म, q इज द वेरिएबल एंड 2 अल्फा माइनस 1, ओके, q की पावर 2 अल्फा माइनस 1, ओके। सो आई एम सिंपली गोइंग टू राइट हियर q की पावर 0। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, q की पावर 0 समथिंग इज इक्वल टू 1, सो q की पावर 0। सो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कोफिशिएंट का, और जब हम कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे सो वी विल गेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 एंड 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, सिंपली कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, और जब कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 मिला और 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2, और जैसे ही ये इक्वेशन आप यहां पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि अल्फा 1/2, बीटा इज इक्वल टू 2, ओके। सो हमने देखा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्वेश्चन ये पूछा था कि अल्फा और बीटा की ऐसी क्या वैल्यू हो कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन हो, गिवन प्रॉब्लम है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो, कैनोनिकल हो। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये स्टेप फॉलो करना है।
अगर आप ये स्टेप लिख लेते हो उसके बाद सिंपली ये कैलकुलेशन स्टेप बचता है। सो ये टोटली जो है कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि आपका न्यूमेरिकल अप्रोच कैसा है। सो नेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक ही सजेशन है, और वो सजेशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप फिजिक्स जो है 1 से 2 लाइन में खत्म हो जाती है, और जो बचता है वो क्या बचता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। अगर आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही।